Good morning, students. How are you all? Hope you are fine and safe too. So, students, what we have learned in our previous video, something about Nike Devi and Queen Udaymati. Then, after we have started our new chapter, that was chapter 4, that is Mughal Empire established and their extension. In that, if we take that rapid revision, so first we have learned something about Barbar, then after we have learned something about Humayun, and in between we have learned something about Sher Shah Suri also. Then after we have learned something about Akbar, how Akbar born and how he ascend the throne after at the age of 13 after his father death Humayun, and how Bairam Khan, a faithful minister of Humayun, took care of administration on behalf of Akbar. So we have learned all these things about Akbar and Humayun. Now today we are going to learn the relationship of Mughals with other rules, traditions of inheritance. Then we will learn something about the heroics of Chittor, reforms of Sher Shah. We will learn something new topic about related to this chapter. So first we will take the topic, that is relation of Mughal empires with other rulers. When Humayun has escaped, even the Hindu rulers gave him shelter. Therefore, their culture was reflected in the upbringing of Akbar. He took the help of Hindu rulers when he ascended the throne. He knew that he would not be able to rule in India if he ignored the Rajput rulers. Therefore, he maintained the good relations with the Rajput rulers and won their confidence. The rulers who did not accept his authority had to face him. The ruler of Sisodia Rajput did not accept his rule, and he had made many confrontations with him. सो अब हम इस चैप्टर में क्या लर्न करेंगे? हम लर्न करेंगे कि मुगल्स के रूलर्स जो थे उनका रिलेशन था वो दूसरे रूलर्स के साथ कैसा था। जैसे कि हम जानते हैं कि मुग़ल एम्पायर जब इस्टेब्लिश्ड हुआ उससे पहले किसका रूल स्टार्ट था? राजपूत का था। और तभी के तभी उन्होंने क्या किया था कि राजपूत का जो टाइम था तब भी बहुत अच्छा था। नो डाउट उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि राजपूत का जो बहुत ही जो कीन टाइम था ना, बहुत अच्छा टाइम, वो थोड़ा डाउनफॉल चला गया मुगल्स के बाद। बट जो राजपूत अभी भी मुकम्म थे अपने काम पे, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे, एंड अभी तक वो जो किंगडम हासिल करके बैठे थे, तो वो तब के टाइम पे भी तभी क्या थे, मुकम्म थे एकदम अपने काम पे। तो होता क्या था कि ये जो मुग़ल एम्पायर थे, अभी देखो डायरेक्टली हम कोई भी जो हमारा कोई भी किंगडम हो उसमें हम डायरेक्टली क्या करें, राज करने जाएं, तो हमें पता ना हो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, उनके राज का, उनके पार्ट का, हम तो डायरेक्टली हम क्या करें, जैसे भी जो भी दूसरी डायनेस्टी आती थी वो क्या करती थी, खुद का ही सब कुछ इस्टेब्लिश करती थी। क्योंकि रोज जो राजा उनके सामने हार जाता था तो उसका तो कुछ चलता नहीं था। चलता किसका था? उन एम्पायर्स का, जिन्होंने वो बैटल जीती हो और जो राजा वहाँ उस राजगद्दी पे राज करे। अब हुमायूं को क्या था कि उसको दूसरे रूलर्स जो थे उनके साथ भी रिलेशन क्या रखना था, अच्छा रखना था। क्योंकि वो जानते थे कि जैसे कि अगर वो हिंदू लोगों की जो क्योंकि ये तो क्या हो गया, मुग़ल एम्पायर हो गया, पूरा अलग ही उनका धर्म हो गया। तो अगर वो हिंदू लोगों की हेल्प ना लेंगे, उनके बारे में नहीं समझेंगे, तो होगा क्या, उनका जो राजपाट है वो इतना आगे इस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाएगा। तो उसने किया कि राजपूत के साथ क्या कर डाला, अपनी फ्रेंडशिप दिखा दी ऐसे। और उनके साथ उसने बहुत ही अच्छा अपना क्या दिखाया, रिलेशन दिखाया कि वो बहुत ही क्या है कि बहुत ही लॉयल है और उनका रिलेशन है वो बहुत अच्छा है। देन आफ्टर वो क्या करते थे, जैसे ही उनका भरोसा जीत लेना हम, उसके बाद वो क्या करते थे, खुद अपने ही फ्रेंड के साथ क्या करते थे, उनके ही एम्पायर में क्या करते थे, अटैक करते थे।
जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि सिसोदिया राजपूत, सिसोदिया जो है वो डायनेस्टी चल रही थी, राइट. ही टुक द हेल्प टू हिम रूलर when he ascended the throne. He knew that he would not able to rule in India if he ignored the Rajput rulers. Therefore, he have to maintain a good relation with Rajput rulers and then won their confidence. The rulers of Sisodia Rajput जो थे उन्होंने did not accept his rule and he had many confrontations with him. फिर उनको क्या लगने लगा था कि हमने जैसे कि बाबर ने दिल्ली पे अटैक किया था तो दिल्ली तो हासिल हो गया था, उसके बाद हुमायूं ने पूरा का पूरा अपना वो क्या कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम संभाला, पर जो बाकी के स्टेट थे, बाकी के जो किंगडम्स थे वहाँ पे भी क्या था कि थोड़ा रूल जो था वो किसका चलता था, तो वो रूल चलता था राजपूत्स का. तो हुमायूं ने अभी तो दिल्ली पे अटैक किया था और दिल्ली हासिल किया था, पर दूसरे जो स्टेट अगर उसको हासिल करने थे, वो अंडर में लेने थे, तो उसमें क्या था, उसको रिलेशन है ना गुड रखने के थे किसके साथ, हिंदू एम्पायर्स के साथ, हिंदू रूलर्स के साथ. तो उसने क्या किया, हिंदू रूलर्स के साथ जो दूसरे राजपूत से उनके साथ रिलेशनशिप तो अच्छा रखा, बट सिसोदिया राजपूत है उन्होंने क्या किया, वो उनके साथ जो फ्रेंडशिप थी वो हमेशा उनके साथ रखते नहीं थे. उनको कहीं ना कहीं यही लगता था कि आज नहीं तो कल ये हमें धोखा देने ही वाले थे. एंड they are doing like that only. First they will do the friendship, very good friendship with them, then after what they had do, then after where they did that, they are not loyal about their friendship. वो पीछे से क्या करते थे, छुरा भोंकते थे, ऐसे करते थे. फिर क्या करते थे कि भाई पहले फ्रेंडशिप कर ली, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, पूरे रूल्स कैसे होते हैं, किस हिसाब से वो अपना काम करते हैं, काज करते हैं, वो सारी जानकारी ले लें, उनके फ्रेंड्स के साथ भी वो अच्छा रिलेशन निभा दे. फिर क्या करते थे, उनके ही अटैक करते थे. तो इससे होता क्या था, इससे ये होता था कि वो धीरे 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 अपना जो एम्पायर है वो क्या करते थे, इस्टेब्लिश्ड करते जाते थे. Now we will learn something about traditions of inheritance. The king was responsible for appointing the successor of the kingdom, and it would be usually to be oldest son. During the Mughal rule, all the sons would get an equal share of the empire. This kind of hierarchy was implemented during Humayun's region. After that, the rulers conspired against each other for the throne. Brother would quarrel with one another for the throne and whoever who ascend the throne of दिल्ली. अभी इसमें मुगल एम्पायर में क्या होता था कि जैसे ही किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, उसके पापा की डेथ हो जाए, अब उसके पापा की डेथ हो जाए या किसी की उसके भाई की डेथ हो जाए, तो उसके बाद जैसे कि आपको मोनार्की सिस्टम के बारे में पता ही है, क्या होता था कि एक के बाद जिसकी डेथ हो गई उसके बाद जो भी किंग हो या जो उनका सन हो या उनका भाई हो, क्या चलता था, उनके साथ उनका रूल चलता था. जैसे कि बाबर थे, बाबर की जैसे ही डेथ हुई तो किसने पूरा का पूरा थ्रोन संभाला, हुमायूं ने संभाला. बट हुमायूं के बाद हुआ क्या कि जो भी सन थे उसके, उनमें क्या होने लगी, क्वारल होने लगी. क्या होने लगी, क्वारल मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगे. जो प्रॉपर्टी के नाम पे होता है ना कि भाई ये हिस्सा मेरा, वो हिस्सा मेरा, उसमें क्या होने लगे, ये लोग झगड़ा करने लगते थे ऐसे. और तब क्या होता था कि जो भी हिस्सा होता था, जिसकी जैसे कि उनके पापा की डेथ हो गया, जो भी जितने भी बेटे हैं, जितना भी हिस्सा होता था वो क्या होता था, इक्वली बांटा जाता था, किसी में भी पार्शलिटी नहीं होती थी. अब एक ही सिंहासन है, वो इक्वली बांटा जाए तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स तो पैदा होंगे ही, झगड़े तो होंगे. अभी एक ही सपोज फॉर एग्जांपल मैं लूँ कि दिल्ली का सिंहासन है, तो दिल्ली का सिंहासन है तो सब में जो भी उनके पास, हुमायूं के पास बाद जो भी उनके पास जितना भी पैसा था वो क्या हो गया, बाकी सारे जो उसके बच्चे थे उसमें इक्वली बांटा गया. अब इक्वली बांटा गया तो उससे क्या हो, हर एक का हिस्सा इक्वली हो जाए. जैसे कि अभी मैं ऐसे बोलूं कि भाई चॉकलेट्स हैं, 4 चॉकलेट्स है, चारों चॉकलेट्स 4 बच्चों में इक्वली बांटी जाए तो कैसे होगा, हर एक को कितनी चॉकलेट्स मिलेगी, एक एक मिलेगी, राइट. उसी तरह से इनका जो एम्पायर था वो इक्वली बांटा जाता था. अब इक्वली बांटा जाए तो होता क्या था, हर कोई बोले मैं राजा बनूंगा,
राइट। जैसे कि चारों चॉकलेट एक ही बच्चे को मिले तो ज़्यादा जिसके पास क्वांटिटी हो हम उसको किंग बनाए। बट अगर 4 चॉकलेट है और चारों बच्चों को मिले तो क्या होगा, हर वो भी बोलेंगे ना कि मेरे पास एक एक इक्वल ही चॉकलेट है, तो जो भी चीज़ उसको देने वाली हो, जो भी गिफ्ट, जो भी सरप्राइज उनको मिलने वाले हो, तो वो तो चारों लड़ेंगे ही। क्योंकि वो बोलेगा मेरे को भी एक ही चॉकलेट मिली है, तो दूसरा बोलेगा मेरे को भी एक चॉकलेट मिली है। तो वो अपना हक कैसे निभाएंगे, इक्वली निभाएंगे, राइट। तो उसी तरह से जैसे भी उनका एम्पायर था वो इक्वली बांटा जाता था, जो भी चीज़ें होती थी वो उसमें इक्वली बांटी जाती थी। तो होता क्या था, होता ये था कि वो लड़ते थे थ्रोन के लिए, अपने सिंहासन के लिए। क्योंकि किसी एक पर्सन को तो बैठना पड़े ना सिंहासन पे, तो कौन सा पर्सन बैठे सिंहासन पे, उसके लिए क्या होता था, झगड़े होते थे, राइट। देखो इसमें लिखा ही है, ब्रदर वुड क्वारल विद वन अनदर फॉर द थ्रोन एंड हुएवर वॉन सक्सेस द थ्रोन ऑफ दिल्ली। फिर जो दिल्ली का थ्रोन सक्सेस करे, हासिल करे, वो उसको मिलता था। तो वो अपने सिंहासन के लिए, अपने चेयर के लिए, जो किंग की गद्दी होती है, जैसे कि महाभारत में आपने देखा ही होगा कि कैसे वो एक सिंहासन के लिए क्या करते थे, युद्ध करते थे, राइट। कि भाई किसको है ना ये सिंहासन मिलना चाहिए, ये जो राजा की जो चेयर जो होती है, जो पूरी सिंहासन से भरी हुई होती है, वो किससे मिले, कौन से भाई को मिले, कौन सा भाई जो है वो है ना लड़ाई में सबसे आगे है, कैसे वो लड़ सकता है। उसी तरह से ये लोग भी क्या करते थे, अपने सिंहासन के लिए लड़ते थे। देन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर। अब हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि मुगल एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे थी। जैसे कि हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम राजपूत की कैसे होती थी, कैसे वो इक्वली सबको क्या करते थे, इंसाफ देते थे, जो भी प्रजा होती थी उनके बारे में सुनते थे और उनको इंसाफ देते थे। उसी तरह मुगल एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या थी, वो कैसे अपना एम्पायर मैनेजमेंट करते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा उनके रिलेशंस कैसे थे, वो कैसे अपने रिलेशंस दूसरे रूलर्स के साथ रखते थे। तो अच्छे रखते थे, क्यों अच्छे रखते थे, क्योंकि उनको पता ही था अगर वो रिलेशन प्रॉपरली उनके साथ अच्छे नहीं रखेंगे तो दूसरे जो राजपूत रूलर्स है उनके बारे में उनको पता नहीं चलेगा, वो कैसे रूल करते हैं, किस तरह से करते वो उनको पता नहीं चलेगा। तो पहले क्या बनते थे, फ्रेंड्स बनते थे, फिर क्या करते थे, अटैक करते थे। देन आफ्टर ट्रेडिशंस की बात की जाए तो उसमें क्या होता था कि जो भी फादर की डेथ हो जाए तो जितने भी उसको सन है कैसे उनको जो भी उनका जो इस्टेब्लिश किया हुआ एम्पायर है वो उनको हिस्सा जो है उनका उनको इक्वली मिलता था। तो इक्वली मिले तो क्या होता था, हर कोई क्या करता था, हर पर्सन अपने सिंहासन के लिए क्या करता था, लड़ता था। दे विल क्वारल them with one another for the throne who wants ascend the throne of दिल्ली। दिल्ली का जो थ्रोन है, दिल्ली का जो सिंहासन है वो किससे मिले। अब हम लर्न करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर। द जुबेदारी सिस्टम implement during the Mughal period. Akbar divided his kingdom into 15 sections. Each section was known as the Suba or province. The subsection of Suba was called the government and the subsection of government was known as Pragna. The head of each Pragna was called Amir, who would collect the revenue. There were Gram Panchayats in village and head was known as a Patel, Chaudhry, Mukaddam, etc. Thus, during that time, various executives were appointed. अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे होता था, तो क्या होता था कि कौन से सिस्टम पहले फॉलो की जाती थी, तो सूबेदारी सिस्टम फॉलो की जाती थी। अब उस सिस्टम में क्या होता था कि अकबर ने क्या किया, अपना जो किंगडम वो 15 सेक्शन में डिवाइड कर डाला था। ईच सेक्शन वॉज नोन एज सूबा और प्रोविंस। क्या होता था, हर एक सेक्शन कैसे किस नाम कैसे जाना जाता था, विच नोन एज सूबा और प्रोविंस। द सब सेक्शन ऑफ सूबा वॉज कॉल्ड गवर्नमेंट एंड सब सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट वॉज नोन एज प्रगना। अब सब सेक्शन जो होती थी, सूबा जो होती थी वो
सब सेक्शन कॉल्ड अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, तो आपको पता ही है गवर्नमेंट क्या करती है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो मैनेज करती है। उसी तरह से इन लोगों ने क्या किया, हर एक सेक्शन सूबा और प्रोविंस, और वी विल कॉल द प्रोविंस, उसमें बांट दिया। अब उसमें सेक्शन लगा दिया, जैसे कि पहले हमारे में कैसे है, PMI CMI, ठीक है। तो इस तरह से प्रेसिडेंट नाम के, फिर PM हो, फिर CM हो, तो कैसे सब सेक्शंस हो जाते हैं, एक के अंडर एक, एक का अंडर है। जैसे कि कोई कंपनी हो तो उसमें कैसे पहले CEO होता है, फिर क्या होता है कि HR होता है, देन ये देन आफ्टर एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर होते हैं, ये सब जो होते हैं तो उनकी कैसे लाइन बनी हुई होती है कि हेड, उसके नीचे कौन सा हेड है, उसके नीचे कौन सा हेड है, उसके नीचे कैसे हो जाए। इसी तरह से उन्होंने क्या किया, अपने सेक्शंस बना दिए, सब सेक्शंस किसकी, तो गवर्नमेंट के। अब वो गवर्नमेंट क्या करती थी, मैनेज करती थी, क्या, पूरा का पूरा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फिर उसमें वो क्या करते थे, क्या कहते थे, सेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट वाज नोन एज प्रगना। द हेड ऑफ ईच प्रगना वाज कॉल्ड आमिर एंड हु वुड कलेक्ट द रेवेन्यू। अब वो क्या करते थे, जैसे ही सेक्शंस गवर्नमेंट के बनाते थे उसको वो क्या बोलते थे, प्रगना। क्या बोलते थे, प्रगना। देन आफ्टर उसकी जो प्रगना होता था उसको क्या बोला जाता था, आमिर बोला जाता था। अब आमिर क्या होता था, हेड होता था सेक्शन का, गवर्नमेंट का। फिर वो लोग क्या करते थे, कलेक्ट करते थे रेवेन्यू। जैसे कि मैंने आपको पहले भी स्टैंडर्ड सेमेस्टर फर्स्ट में चैप्टर 6 में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पढ़ा था हमने, रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और 1/6 पार्ट ऑफ रेवेन्यू वो लोग किसको देते थे, किंग को देते थे। और किंग उसमें से क्या करता था, पूरा का पूरा अपना किंगडम चलाता था। जैसे भी किसी को भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो उस कलेक्शन में से बनता था। और कहीं ना कहीं वो कलेक्शन जो लेते थे, 1/6 पार्ट गवर्नमेंट जो लेती थी, वो अपनी प्रजा के हित के लिए ही अच्छी सी चीज़ें जो उनको रिक्वायरमेंट हो वो बनाती थी। जैसे कि यहाँ पे हम टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट में हम इनको टैक्स भरते हैं, तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या बनाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी बनाती है ना, गार्डन है, राइट। गार्डन में हम जाते हैं आते हैं, तो ये क्या है, गार्डन एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, फाइन। देन आफ्टर रोड्स बनाती है, रोड क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो ये चीज़ें जब गवर्नमेंट हमारे लिए बनाती है तो वो किससे बनाती है, किसका रुपीस यूज़ होता है, तो पब्लिक का ही पैसा यूज़ होता है। उसी तरह से ये लोग रेवेन्यू लेते थे। अब वो ये रेवेन्यू लेने से क्या होता था, वो अपनी ही प्रजा को क्या करते थे, हेल्प करते थे। कोई अगर बुरी से क्या कहते हैं कि भाई उनका जो होता है ना कि भाई बुरी हालत है, जैसे कि उनको खाने पीने का नहीं है, किसी को कोई प्रॉपर काम नहीं मिलता है, तो काम दिलवाने में क्या करते थे, हेल्प करते थे। तो वो उसको क्या बोलते थे, आमिर बोलते थे। क्या बोलते थे, आमिर। अब आमिर कौन होता था, जो रेवेन्यू कलेक्ट करे। फिर क्या होती थी, ग्राम पंचायत होती थी विलेज में, ये तो आपको पता ही है। देन आफ्टर उनके हेड कौन होते थे, तो द हेड वॉज नोन एज पटेल, चौधरी, मुकद्दम एक्सेट्रा। पटेल, चौधरी, मुकद्दम जो ऐसे होते थे ना नेम, वो कौन होते थे, हेड होते थे। हेड किसके, तो विलेज के। जैसे कि पंचायत बुलाई जाती है, तो जैसे मुखिया होता है, जैसे कि हमने चैप्टर 6 में सेम 1 में पढ़ा था, वो क्या करता था, सबकी बातें सुनता था। कोई भी घर का कोई इशू हो, या किसी को कामकाज नहीं मिलता हो, या कोई किसी को परेशान करता हो, तो हम कैसे यहाँ पे कंप्लेन करते हैं, तो पुलिस कंप्लेन होती है। उसी तरह से ग्राम पंचायत में जो हेड होते थे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने पटेल और चौधरी का नाम दिया है, वैसे मुखिया होता था, वो क्या करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। और उनकी बातें सुनने के बाद वो क्या करते हैं, उन पे एक्शन लेते हैं कि अब इसका क्या करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, अभी के टाइम पे कोर्ट होती है, जैसे जिससे हमें जस्टिस मिलता है, राइट। हम जस्टिस के लिए लड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ पे कंप्लेन करते हैं, तो कोर्ट में। कोर्ट में हम पहले पुलिस के बाद जाते हैं, फिर क्या होता है, वो हमारी FIR लेते हैं। देन आफ्टर हम कोर्ट में जाते हैं, हमें क्या मिले, जस्टिस मिले, कोई भी चीज़ हमारे साथ गलत होती है। उसी तरह से जब गांव में किसी के साथ गलत होता हो, या किसी की चीज़ें चोरी हो गई हो और उनको पता हो कि उन्होंने ये चीज़ उनकी किसने ली है, तो क्या होता था, मुखिया जो होता था, जो हेड होता था,
गांव का वो क्या करता था, सॉल्यूशन लाता था हर एक चीज का, राइट। During Akbar's reign, pilgrim tax was not levied. Thus, there would be a huge crowd in the pilgrim center. Akbar was considered to be the most tolerant and benevolent king among all the Mughal rulers. He regularly organized religious meets in their prayer hall at Sikri. It was called a discussion hall as religious matter were discussed there. Representative from all religions attend the meeting. The royal court was adorned by scholars. The 9 gems of Akbar court were Todarmal, the revenue minister, Mansingh, the leader of Daksh army, Abdul Fasal, the historian and writer of Anin Akbar, Akbari and Akbarnama, Tansen, the famous singer, Mullah do Piazza, the clever and jolly courtier, Mahensan Das Birbal, the queen wit courtier and tricker, Hamam, the famous Vidya physicians, Faizi, the renowned poet, and Abdul Rahim, the Hindi verse writer. ये सब क्या होता था, जैसे कि देखो अब क्या होता है कि अकबर जो आपने नाम सुना ही होगा, इवन दो आपने जोधा अकबर ये भी नाम सुना होगा, ये क्या है, एक फेमस स्टोरी है कि कैसे मुगल एम्पायर के जो किंग अकबर बहुत ही उन्होंने आफ्टर हिज फादर डेथ हुमायूं उन्होंने अपना जो एक खुद का एम्पायर है वो इस तरह से इस्टेब्लिश्ड किया था कि हर एक जगह पे उसका खौफ लगने लगा था। और अकबर जो थे वो बहुत ही नाम जाने जो रूलर थे माने जाते थे। ऐसा भी माना जाता है कि सारे मुगल एम्पायर में से जो अकबर थे ना वो काफ़ी ऐसे स्ट्रॉन्ग रूलर तो माने जाते थे, बट वो दूसरे धर्म की भी क्या करते थे, रिस्पेक्ट इतनी करते थे नहीं। तो काफ़ी आपने देखा ही होगा कि दूसरे धर्म के लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं ना कि जो भी है अब हम यहाँ पे मैं राज करता हूँ तो मेरी ही चीज़ें चलनी चाहिए। बट अकबर जो थे वो क्या करते थे, हर एक धर्म को इक्वली मान देते थे, सम्मान देते थे और चर्चाएं भी अपने अपने धर्म के बारे में की जाती थी। इवन दो उन्होंने जो शादी की थी वो एक हिंदू थे। जो जोधा जो थी आपने नाम भी सुना होगा जोधा अकबर, एंड इवन आपने सुना होगा कि मूवी भी थी। अगर किसी ने जोधा अकबर मूवी देखी हो ना, और अगर किसी ने नहीं देखी हो ना तो देखना कि किस तरह से जोधा जो थी वो एक राजपुतानी थी और वो जो थी ना वो हिंदू थी, और अकबर जो थे वो कौन थे, मुस्लिम थे, मोमेडियन थे। फिर भी वो उनकी वाइफ के धर्म को भी इतना ही मान देते थे जितना वो अपने धर्म को देते थे। तो अकबर के टाइम पे क्या होता था, पिलग्रिम टैक्स जो थे वो लिया नहीं जाता था कि भाई लोग घूमने आए हैं, अलग अलग चीज़ें बनी है, हिस्टोरिकल प्लेसेस बनी है, तो वहाँ पे लोग क्या है, घूमने आए फिरने आए। पर तब क्या होता था, वहाँ पे टैक्स जो होता था वो लोग लेते नहीं थे। अकबर के टाइम पे उन्होंने क्या किया था कि कोई भी मंदिर मस्जिद पे आए जाए या पहले जो टैक्स लिया जाता था वो उन्होंने क्या किया था, लिया नहीं था, वो बैन करवा दिया था। उनके हिसाब से ऐसा था कि लोग यहाँ पे घूमने आते हैं तो यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह लागू ना पड़े, वो अपने मन से आते हैं और अपनी श्रद्धा से आते हैं, क्योंकि हर एक लोग टैक्स पे करे वो उनकी किसी की हैसियत होती थी किसी की नहीं होती थी। तो उन्होंने क्या कर डाला था, सबके लिए इक्वल कर डाला था कि टैक्स पे नहीं करने का। तो उस हिसाब से जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती थी वहाँ पे क्या होती थी, भीड़ भाड़ ज़्यादा पाई जाती थी। अब अकबर जो थे उन्होंने क्या किया था, वो क्या करते थे, वो रेगुलरली ऑर्गेनाइज करते थे रिलीजियस मीटिंग इन द प्रेयर हॉल एट सिकरी। अब वो क्या करते थे, रिलीजियस मीटिंग रखते थे।
कहाँ? एक प्रेयर हॉल में। एक प्रेयर हॉल में क्या होता था, बहुत बड़ा प्रेयर हॉल होता था। वहाँ पे हर एक धर्म के राजा आते थे और वहाँ पे वो मीटिंग रखते थे। देखो, एंड इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्कशन हॉल एज रिलीजियस मैटर वॉज डिस्कस्ड। और वहाँ पे रिलीजियस मैटर्स के बारे में क्या होता था, डिस्कशंस वगैरह होता था कि भाई किस तरह से कैसे लोग अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं और कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत वगैरह आती थी तो वहाँ पे उस हॉल में क्या होता था, डिस्कशन होता था एंड उसका क्या होता था, सॉल्यूशन होता था। अब अकबर के जो थे वो 9 जेम्स थे कोर्ट के, और उनके यहाँ पे क्या लिखे गए, नेम लिखे गए हैं, जैसे कि तोदरमल, अब्दुल फजाल, देन आफ्टर अकबरनामा, तानसेन, मोलादो पियाजा। ये जो थे वो अकबर के 9 जेम्स थे। अब वो थे क्या, वो अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट काम में नाम नाम नामे जाते थे। जैसे कि तोदरमल है, वो कौन थे, तो वो थे रेवेन्यू मिनिस्टर। मान सिंह थे, वो कौन थे, द लीडर ऑफ दक्ष आर्मी। अब्दुल फजल थे, वो कौन थे, द हिस्टोरियन एंड द राइटर ऑफ अनिन अकबरी एंड अकबरनामा। तानसेन, द फेमस सिंगर। मुलादो पियाजा, द क्लेवर एंड जोली कॉटियर। महेश Das Birbal, the quick-witted courtier, and the tricker Hammam, the famous विद्या फिजिशियन। ये जो अकबर के 9 जेम्स थे वो अपने अपने नाम से, अपने अपने काम से क्या थे, बहुत फेमस थे। इनके नाम आपको थोड़े से अजीब लगेंगे क्योंकि जैसे कि यहाँ पे अब्दुल फजल लिया गया, मोलादो पियाजा लिए गए। ये जो नेम है ये उनके नेम अपनी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा जो मोमेडियन होते हैं उनके नाम जो होते हैं वो हिंदू नाम से अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो नाम लिखे गए हैं वो उनकी कास्ट के हिसाब से लिखे गए हैं। जैसे कि मुलादो पियाजा वो हिंदू नाम में नहीं आता, तो वो किसका है, द मुगल एम्पायर का नाम है। अब्दुल फसल है, वो हिंदू नाम में नहीं है, तो वो क्या है, उनके मुगल एम्पायर के नाम जो जिनके नाम रखे जाते हैं ना वो है। जैसे कि हिंदू में नाम रखा जाए तो क्या रखा जाता है, जैसे कि हमने आगे पढ़ा क्या था, चौधरी था, पटेल था, ये हिंदू धर्म के नाम हो। और इनके नाम धर्म के नाम थोड़े से आपको अजीब लगेंगे बट वो अलग होते थे। तो अकबर के जो 9 जेम्स थे वो अपने कोर्ट में अलग अलग अपने काम से क्या थे, फेमस थे। अभी आपने बिरबल का नाम सुना ही होगा। बिरबल कौन था, बिरबल बहुत चतुर था। कोई भी चीज़ होती थी, किसी के साथ भी इंसाफ प्रॉपर नहीं होता था, और किसी को कहीं चोरी हो जाती थी या कोई चीज़ पे अगर आपको लगे कि हमारे साथ सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है, तो क्या होता था, अकबर जो होता था ना वो सॉरी बिरबल जो होता था ना वो पूरा का पूरा तानसेन करके किसके यहाँ कैसे चोरी हुई, किस तरह से चोरी हुई, किस तरह से किसी ने चोरी की, पूरी की पूरी क्या करता था, हिस्ट्री में डूब जाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, जैसे कि आप जानते होंगे कि भाई सोनी टीवी पे CID सीरियल पहले बहुत आता था, अब तो बंद हो गया है। तो उसमें क्या होता था, इन्वेस्टिगेट करते थे ना, कोई भी मर्डर होता है तो उसके पीछे के पीछे क्या करते थे, वो इन्वेस्टिगेशन करते थे। और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो मुजरिम होता है उसको क्या मिलता है, सज़ा मिलती है। उसी तरह से बिरबल जो था वो बहुत ही चतुर था, बहुत मतलब बहुत चतुर था। किसी के साथ इंसाफ प्रॉपरली ना हुआ हो, किसी की यहाँ चोरी बार बार हो जाती थी, किसी के बच्चे की डेथ हो जाती थी या किसी की फसल बिगड़ जाती थी, तो बिरबल जो था ना वो पूरे के पूरे जड़ तक जाता था। कोई भी चीज होती थी ना, चीज़ उसकी जड़ तक जाता था और इंसाफ दिलाता था। किस तो कोई भी केस होता था ना तो बिरबल अच्छी तरह से संभाल भी लेता था और उसकी जड़ तक जाता था। तो ये जो अकबर के 9 जेम्स थे वो बहुत ही अपने काम के फेमस थे। देखो ये थिंग्स टू नो में लिखा ही है, दीवान बख्शी, काजी, कोतवाल, और वो क्या क्या काम करते थे उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा है। और ये देखो
रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर किस तरह से, और आपने देखा ही होगा अगर आप मूवी देखोगे या फिर है ना क्या कहते हैं कोई भी यूट्यूब पे जाओगे तो सिर्फ आप देखोगे ना कि कोर्ट ऑफ अकबर, तो उसमें आपको दिखाएंगे किस तरह से अकबर का कोर्ट होता था और वहाँ पे कैसे वो लोग मीटिंग वगैरह करते थे। चित्तौड़'s टेल्स ऑफ ब्रेवरी। अभी ये क्या है चित्तौड़ की टेल्स, टेल्स मतलब इट्स अ वन टाइप ऑफ स्टोरी ऑफ ब्रेवरी कि किस तरह से सिसोदिया डायनेस्टी जो थी उनको उन मुगल्स के साथ क्या हो गया था, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे और किस तरह से उन्होंने लड़ाई करके और उनकी मेवाड़ की जो ब्रेवरी है उनके बारे में बताया गया है। Now see, Chittor's tells of bravery. There were a frequent struggle between the Mughals and the Sisodia Rajput. The courageous Sisodia Rajputs were not ready to accept the Mughal supremacy and so fought against Akbar boldly and bravely. Among all the warriors, Maharana Pratap's bravery is especially noteworthy. Among the rulers of the Sisodia dynasty, Maharana Pratap was one of the who fought against Akbar continuously till the end. Since Akbar wanted to set up his rule in Mewar, there were many battles fought between Mewar and Delhi, among which the Battle of Haldi Ghati is considered to be the landmark battle. Akbar had a huge and well-equipped army with the modern weapons, cannons, gunpowder in sufficient number and artilleries, whereas Maharana Pratap had the advantage of his chivalrous Rajput warrior who lived in the forest and were used to fighting wars in hilly areas. There were just 20 to 22,000 soldiers were fought bravely against lack of Mughal soldiers. In the battle of Haldi Ghati, Maharana Pratap and his horse Chetak attained his martyrdom, and that can never be forgotten. Chetak was especially trained for battles. In the battlefield, Chetak would move according to Maharana Pratap's commands. When the battle of Haldigati was its peak, Chetak acted according to Rana Pratap's instruction and jumped high to reach up to the Mughal Senapati, who was seated on his elephant. A noteworthy incident is one where Rana Pratap threw a spear at the Senapati, but he was saved because of the Howard. There were many such incidents in the Battle of Haldigati, which there were noteworthy. It is believed that where Maharana Pratap was injured, one of his leader wore his cannon to distract the Mughal rulers. Chetak took the injured Rana Pratap away from the battlefield. There are many such incidents about Rana Pratap and Akbar mentioned in history. Maharana Pratap lost the battle against Akbar but did not give up. He wandered in the forest, faced many difficulties but remained determined. Rana Pratap formed the army again with the help of Bahmad Shah, a Jain trader who helped him financially and fought against the Mughals again. He won all the forts except Chittor. He vowed, till I get back Chittor, I will not sleep peacefully. अभी देखो इसमें एक ब्रेवरी के बारे में बताया गया है, चित्तौड़ के ब्रेवरी के बारे में। अब चित्तौड़ में रूल कौन करता था? महाराणा प्रताप। अपने आपने नाम तो सुना ही होगा कि महाराणा प्रताप कितने ब्रेव रूलर्स थे। सिसोदिया राजपूत्स, ठीक है, दे आर बिलोंगिंग टू सिसोदिया डायनेस्टी। सो वो जो थे वो क्या थे, बहुत ही क्या थे, ब्रेव थे। और आपने पहले ही पूरे सेमेस्टर 1 में हमने यही पढ़ा है कि राजपूत कितने ब्रेव थे और किस तरह से वो लड़ाई करते थे। जब तक एंड तक वो हार नहीं जाते या मर नहीं जाते थे तब तक वो गिव अप नहीं करते थे। इवन दो हमने उनकी वाइफ्स के बारे में भी यही पढ़ा है कि वो कितनी ब्रेव होती थी। उसी तरह से महाराणा प्रताप जो है वो बहुत ही ब्रेव थे, राइट। तो महाराणा प्रताप थे वो बहुत ही क्या थे भाई, फेमस थे और बहुत ही ब्रेवफुली पर्सन थे जो
राजपूत के टाइम में थे। अब उनकी बैटल किसके साथ हुई? तो अकबर के साथ हुई, और वो कंटिन्यूसली वो बैटल अकबर के साथ होती रहती थी। बट हल्दी घाटी की जो बैटल थी वो क्या थी? रिमेंबर हो जाती थी, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता था कि हल्दी घाटी पे ही क्या होती थी, उनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। बट महाराणा प्रताप की बात अगर हम करें तो वो क्या करते थे? बैटल ऑफ हल्गी हल्गी घाटी जो थी ना, वो हमेशा लैंडमार्क होता था उनकी बैटल का। Even though I will send the link of Battle of Haldi Ghati, you will see that link, the how the battle was happen in between Akbar and the Maharana Pratap. क्योंकि उनको क्या कहिए, अकबर को क्या चाहिए था? रूल करना था। कहाँ पे? मेवाड़ में। सिंस अकबर वांटेड टू सेट अप हिज रूल इन मेवाड़, तो वो क्या करते थे कि कंटिन्यूसली उनके साथ बैटल होती रहती थी। बट आप सोच सकते हो कि महाराणा प्रताप के 20-22 सोल्जर इतने ब्रेवली अकबर के लाखों मतलब लाखों सैनिकों के साथ लड़ाई करते थे और एंड तक लड़ते रहते थे। और उसमें अगर हम बात करें महाराणा प्रताप के एक चेतक की, तो चेतक कौन था? चेतक उनका एक ट्रेंड किया हुआ हॉर्स था। चेतक जो था वो उनका ट्रेंड किया हुआ हॉर्स था, जो हमेशा महाराणा प्रताप के इशारों पे ही चलता था। जैसे ही महाराणा प्रताप उसको इशारा करे वो अपना कदम उसी हिसाब से चलाता था। इसमें एक इंसिडेंस भी दिया गया है कि जब महाराणा प्रताप उसको बोले ना, चेतक को इशारा करे ना कि अभी हमें इस पर्सन के ऊपर अटैक करना है, इस सेनापति के ऊपर अटैक करना है, तो वो अपनी छलांग इतनी बड़ी लगाता था, तो इतने बड़े हाथी जो होते थे ना, सीधा उनके ऊपर जो सेनापति बैठा होता था ना, उनको वो उछाल के फेंक देता था। ऐसे तो चेतक जो था ना, वो अपना एक वेल ट्रेंड हॉर्स था। किसका? महाराणा प्रताप था। और इवन दो महाराणा प्रताप जब इस हल्दी घाटी के बैटल में क्या हो गए कि वे वाउंडेड हो गए, ठीक है, उनको काफ़ी ऐसे लग गया, तो उन्हीं के ही एक जो थे पर्सन, उन्होंने क्या किया? पूरा का पूरा रूप अपनाया, महाराणा प्रताप था, और लड़ाई करते रहे। किसके साथ करते रहे? तो अकबर की प्रजा के साथ करते रहे। और महाराणा प्रताप जो वाउंडेड हो गए थे, उनको चेतक जो उनका हॉर्स था वहाँ से उसको लेके गया, और एक जंगल में उसको लेके गया और उनकी देखभाल की गई। टिल एंड तक महाराणा प्रताप लड़ते रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। और फिर जैसे ही वो ठीक हो गए, तो उन्होंने एक कसम खाई कि जब तक मैं लड़ाई नहीं कर रहूँगा, तब तक मैं चैन की नींद सोऊंगा नहीं। और उसके बाद उसने फिर से अपनी क्या बनाई? एक प्रजा बनाई। किसकी हेल्प से? तो बहामद शाह से। उनके साथ उन्होंने हेल्प से उन्होंने क्या किया? उनकी हेल्प से उसने फिर से एक अपनी प्रजा बनाई और अपनी लड़ाई स्टार्ट की फिर से। अब उसने क्या किया? महाराणा प्रताप ने सब कुछ हासिल कर दिया, बट ही वॉन ऑल द फोर्ट्स एक्सेप्ट चित्तौड़। चित्तौड़ वो हासिल नहीं कर पाए। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? एक ब्रेवरी के बारे में पढ़ा। किसकी ब्रेवरी के बारे में? तो महाराणा प्रताप की ब्रेवरी के बारे में। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या आज इस वीडियो में लर्न किया इस टॉपिक पे? तो पहले मुगल्स के रिलेशंस कैसे थे दूसरे मुगल्स के साथ, दूसरे रूलर्स के साथ, दूसरे राजपूत्स के साथ। देन आफ्टर उनके ट्रेडिशन के हिसाब से थ्रोन कैसे मिलता था, और कैसे जो हिस्सा था वो इक्वली बांटा जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, तो कैसे अकबर ने सूबेदारी सिस्टम अपनाई थी। 15 सेक्शंस रखे थे, उसमें सब सेक्शंस, उसके अंदर सब सेक्शंस रखे थे। देन आफ्टर पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो होती थी उसने फॉर्म की थी। पंचायत फॉर्म की थी, पटेल फॉर्म किया था, चौधरी फॉर्म किया था, और कैसे वो अपने गाँव में अपने अपने लोगों को इंसाफ दिला सके। देन आफ्टर अकबर के टाइम पे क्या होता था कि अकबर सारे मुगल्स में एक ब्रेव और एक ग्रेट पर्सन माना जाता था पूरे के पूरे मुगल एम्पायर में। और वो एक
प्रेयर हॉल रखते थे जहाँ पे सारे रिलीजियस, सारे धर्म के लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे और अपने अपने धर्म के बारे में वो क्या करते थे, डिस्कशंस करते थे. इवन दो अकबर मैरिड विद द हिंदू लेडी, हर नेम वॉज जोधा. तो वो उनके धर्म को भी इतना ही मान सम्मान देते थे जैसे वो दूसरे धर्म को देते थे. और अगर उनके 9 जेम्स की बात की जाए तो उनके 9 जेम्स के हिसाब से जो अपने वर्क में वेल फेमस था, वेल परफेक्ट था, उनके बारे में दिया गया. उनके नाम भी अलग अलग दे रखे हैं. ये दिस इज द पिक्चर ऑफ रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द चित्तौड़'s टेल्स ऑफ ब्रेवरी, तो इसमें हमने ये पढ़ा, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा. महाराणा प्रताप जो सिसोदिया राजपूत से बिलोंग करते थे, वो बहुत ही ब्रेव थे. उनका पूरा जन्म जंगलों और पहाड़ों में बीता था. तो उनको पता था किस तरह से उनको फौज बनानी है और किस तरह से वो अकबर के साथ लड़ाई करते थे. और अगर हम बात करें तो उनके हॉर्स चेतक के बारे में भी बात की जाइए. और हल्दी घाटी की जो युद्ध होता था, लड़ाई होती थी, वो बहुत ही नामी चाहिए क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली बैटल्स होती रहती थी. सो स्टूडेंट्स, here we have completed our chapter 4, that is Mughal Empire, their established and their extension. On the next lecture, we will learn about Mughal Empire, Golden Age and Downfall Age. And even though I will send the link also of Haldigati battle, so you will watch that link, then you will get easily to understand the history of Akbar and Maharana Pratap. Till that, stay home, stay safe, and thank you.